کہتے ہیں حضور ہم کو سلسلہ عالیہ مداریہ میں مرید کر لیجئے، ہم کو داخل سلسلہ کر لیجئے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا وہ شیر نہیں تھا، وہ ایمان والے تھے۔ انہوں نے کہا ایک شرط ہے، میں تم کو مرید تو کر لوں گا، میری شرط یہ ہے کہ تم کو اسلام کی خدمت کرنا پڑے گی۔ نذرانہ اور شکرانہ نہیں مانگا، بینک بیلنس نہیں کہا، آپ سے کوئی زمین و جائیداد نہیں طلب کی، بلکہ سرکار قطب المنار کے دیوانے نے کہا کہ ہم کو اسلام کی خدمت تم سے چاہیے، تم کو 12 لاکھ مسلمان کرنا پڑیں گے، 12 سال تک تم کو اسلام کی خدمت کرنا پڑے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ سرکار زندہ شاہدار کے چاہنے والے تھے، تو آپ نے کو کہا حضور مجھے آپ کی شرط منظور ہے، آپ مرید کو کر لیجئے، میں 12 لاکھ مسلمان کر دوں گا، 12 سال تک خدمت بھی کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ مرید ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، آپ بستر علالت پر پہنچ کے بیمار پڑ گئے، ابھی چند ہاتھوں پر مسلمان ہوئے تھے، چند ہی داخلے سلسلہ ہوئے تھے۔ انسان کے جب مرنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو خود احساس ہو جاتا ہے، کوئی بھی ہم ہو آپ ہو خود کو پتہ چل جاتا ہے، عنقریب ہماری روح پرواز کر ہمارے جسم سے ساتھ چھوڑ دے گی۔ تو سرکار قطب غوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا کہ ہم نے اپنے پیر سے وعدہ کیا تھا کہ 12 لاکھ مسلمان کروں گا، اور ہماری موت کا وقت تو قریب آ گیا، ابھی چند ہی مسلمان ہوئے، لیکن آپ کو اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ تھا، ایمان کامل جس کو کہتے ہیں، مومن کامل، کہ یہ لاکھ سجدے میریا مگر آئی غیر اسے یہ صدا، جو نہیں ہے الفت مصطفیٰ تو یہ بندگی عزیزان ملت اسلامیہ حضرت قطب غوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مریدوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے محبین، اے میرے متوسلین، میں نے اپنے پیر سے وعدہ کیا تھا 12 لاکھ مسلمان کروں گا، میری روح اللہ پرواز کرنے والی ہے، لیکن ایک کام کرنا، جب میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ دے، روح پرواز کر جائے تو میرے جنازے کو نہلانا، میرے جنازے کو کفنانا، جنازہ نہلا کر کے کفنانے کے بعد میری نماز جنازہ پڑھنا، میری نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میرے جنازے کو لے کر کے چل دینا، جس جگہ پر جنازہ اپنی مرضی سے رک جائے، تمہارے اٹھانے سے نہ اٹھے، وہاں پر ہم کو دفن کرنا۔ تاریخ بتاتی ہے، اولیاء کرام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار قطب غوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر جاتے ہیں، آج بھی روح کفن سے منصرف سے پرواز کر جاتی ہے۔ حضرت قطب غوری کے مریدین و محبین ہیں، چند مسلمان ہیں، آپ کو نہلاتے ہیں، آپ کو کفناتے ہیں، کفنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، جنازہ پڑھنے کے بعد آپ کے جنازے کو چارپائی میں رکھ کر کے لے کر کے چل دیا جاتا ہے، گاؤں گاؤں، نگر نگر، جگہ جگہ، شہر شہر، گلیاں گلیاں، گاؤں گاؤں، آپ کے جنازے کو لے کر کے آپ کے مریدین کرتے ہیں۔ ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، 1 ہفتہ گزرتا ہے، 2 ہفتے گزرتے ہیں، 1 سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنازہ تو 2 دن میں تو چھوڑ جایا کرتا ہے، بدبو آنے لگتی ہے، یہ کیسا جنازہ ہے، نہ پھٹ رہا ہے، نہ پھول رہا ہے، نہ بدبو آ رہی ہے، بلکہ جنازے سے خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ حضرت قطب غوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 1 سال گزرتا ہے، 1 سال جب گزر جاتا ہے تو لوگوں نے دیکھا، 1 سال پہلے ہم نے یہ جنازہ دیکھا تھا، 1 سال پہلے یہ جنازہ فلاں مقام پر دیکھا تھا، اور یہ جنازہ آج بھی چل رہا ہے، یہ کیسا جنازہ ہے؟ کفار و مشرکین دیکھتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں کہ یہ وہ جنازہ نہیں ہے، یہ کسی اوتار کا جنازہ ہے، پکار اٹھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ قطب غوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر سے وعدہ کیا تھا، 12 سال تک اسلام کی خدمت کروں گا۔ 12 سال گزر جاتے ہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، بلکہ پورے 12 سال تک وہ جنازہ چلتا رہتا ہے۔ اب جنازے کے ساتھ 1-2 ہزار نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लास्ट में वो जनाजा कोलार की धक्के पर पहुंचा, सरजमीने कोलार, और ऐसी जगह जनाजा रखा जाता है जहाँ कुफ्फारों मुशरिकीन का इबादत खाना था। मुरीदीन आपके मुहिब्बीन सोचते हैं यहाँ पर तालाब है, हौज बना हुआ है, यहाँ वज़ू कर ले, नमाज पढ़ ले, फिर पीर साहब के जनाजे को आगे लेकर चले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तमाम के लोग, तमाम ही हज़रात जो है वज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद जनाजा उठाते हैं। जनाजा जैसे उठाते हैं तो जनाजा हिलता भी नहीं है। जनाजा कैसे मस नहीं होता, मुरीदीन समझ जाते हैं हमारे पीर को ये जगह पसंद आ गई है। मेरे पीर की वसीयत थी जिस जगह पर मेरा जनाजा रुक जाए वहीं मुझको दफन करना। दर्द की आग में तदफीन होने की तैयारी होने लगी। उधर कुफ्फार मुशरिकीन को पता चलता है कि मुसलमानों का जनाजा आया हुआ है, एक जम्मे गफीर है, एक बहुत बड़ा मजमा है। तो लोग आ जाते हैं और वज़राओ सल्तनत के वज़रा आते हैं और कहते हैं जल्दी से जनाजे को यहाँ से लेकर के जाओ, अगर हमारी रानी को पता चल गया तो तुम्हारा हश्र क्या होगा, जनाजे का हश्र जो होगा तो होगा, तुम्हारा हाल क्या होगा इसका तुमको अंदाजा नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार कुतुब गौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दीवानों ने कहा हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, हमने अपनी पूरी ताकत सर्व कर दी है, हमारे पीर को ये जगह पसंद आ गई है। मैं आज मेरे पीर का जनाजा अब उठ नहीं रहा है, तुम भी अपनी ताकत लगा लो, तुम भी अपना जोर आजमा लो। तमाम के तमाम उजरा वो जनाजे की चारपाई को पकड़ते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, जनाजा कैसे मत नहीं होता। रानी को खबर पहुंच जाती है, रानी लाहौर लश्कर के साथ आती है, हाथी मंगाए जाते हैं, मोटी मोटी जंजीरें मंगाई जाती है, जनाजे की चारपाई से जंजीर बांध दी जाती है, हाथियों के पैरों में बांध दी जाती है, हाथियों को हटाया जाता है। खुदा की कसम जंजीरें टूट जाती है, हाथी चीख मार करके भाग जाते हैं। पता ये चलता है जहां पर हाथियों की ताकत दब तोड़ दे वहां पर मोमिनों की ताकत का माया। रानी ने जब देखा तो कहने लगी जब वो गुलाम का ये आलम है, जब ये गुलाम का आलम है तो आका का आलम क्या होगा। पढ़ लेती है, रानी पढ़ती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रानी मुसलमान होती है तो सारी रियाया मुसलमान हो जाती है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, शाह जब इनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार सैयदना कुतुब गौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीख बताती है जब दिन शुमार किए जाते हैं तो पूरे 12 साल गुजर जाते हैं, पीर से किया हुआ वादा पूरा हो जाता। तादाद लगाई जाती है कि मुसलमान कितने हुए, तो 12 लाख पूरे मुसलमान भी हो गए। ये अल्लाह वाले होते हैं। जब तुम अल्लाह के हो जाओगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू। जब कोई अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसका हो जाया करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पहले तो हम मोमिन बन जाए, मोमिन तो बड़ी बात है, हम मुसलमान बन जाए। मुसलमान कहते हैं, हम अपनी परिभाषा नहीं जानते, अपनी तारीफ नहीं जानते, कहने को नाम से मुसलमान। हमने कभी गौर किया है तुम्हारी कोई पहचान है, कोई शनाख्त है, हम तुमको कैसे पहचाने कि तुम मुसलमान हो। सिर्फ गोश्त खा लेने से कोई मुसलमान हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुसलमानों जैसा किरदार भी बनाना पड़ता है, मुसलमानों जैसा रहन सहन भी होना चाहिए, मुसलमानों जैसी वज़ाकता होना चाहिए। जिस गली से गुजरे जब दूसरे देखे तो ये पुकार उठे ये मोहम्मद का दीवाना आ रहा है, ये मोहम्मद के चाहने वाला है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुसलमान कहते किसको है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। बताओ
हम मुसलमान हैं, अरे हाथ से नहीं तो जुबान से तकलीफ होती हो। एक दूसरे को बुरा कहने में हम कोई दर्द नहीं करते। हम सगे एक कोख से पैदा है, एक माँ की शिकम से पैदा है। भाई भाई में इख्तिलाफ, भाई भाई को देखना पसंद नहीं करता। इस्लामिया मरने के बाद तो दुनिया को दिखाने के लिए, समाज की नजरों में आने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन खुदा की कसम जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं उनकी हम कदर मंजिलत नहीं समझते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया में बारहा कहता हूँ, जिसके माँ बाप जिंदा हो, जिसके माँ बाप हयात हो, उनको किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, दाखिले सिलसिला हो, मुरीद हो, लेकिन जो दुआ का असर तुम्हारी माँ रखती वो कोई मकान नहीं रखता। मेरा परवरदिगार फरमाता है, अनिशकुरली मेरा शुक्रिया अदा करो। अल्लाह का शुक्र क्या है भाई? अल्लाह का शुक्र है, यही शुक्र है। अल्लाह ने हमें नमाज फर्ज की तो नमाज उसके वक्त पर पढ़े, अल्लाह का शुक्र। रोजा फर्ज किए, रमजान का महीना आया, रोजा रखे। ज़कात फर्ज की, अल्लाह ने हमको मौलो दौलत से नवाजा है तो उसने गुरबा मसाकिन गरीबों का हक रखा है अल्लाह ने आपके पास। आप उसका वो हक दूसरों तक पहुंचाए। अल्लाह ने आपको नवाजा है तो हज्जे बैतुल्लाह करे, काबे का तवाफ करे, गुंबद खजरा की जियारत करे, ये अल्लाह का शुक्र है। ये अल्लाह का शुक्र क्या हुआ? अहकाम इलाही की पाबंदी करना, ये अल्लाह का शुक्र है। इन इबादत के बाद अल्लाह ने किसका मकाम दिया? अल्लाह ने फरमाया, अनिशकुरली मेरा शुक्रिया अदा करो, वले वालिदैका अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। मतलब ये है, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे बंदों, मेरे अहकाम पर अमल करने के बाद किसी की बात को फॉलो अगर करना है वो तुम्हारे माँ बाप की बात है, अपने माँ बाप की बात को फरमाबरदारी किया। माँ बाप राजी है तो अल्लाह अल्लाह का रसूल राजी है। माँ बाप नाराज है, आप लाख नमाज पढ़े, रोजे रखे, माँ को तकलीफ हो। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ को जो दर्द से होता है, पैदाइश के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त जो दर्द हुआ करता है उसको दर्द से बोलते हैं। हर माँ को तकलीफ महसूस होती है। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर बच्चा पूरी जिंदगी अपने माँ बाप को खिदमत करे तो माँ के उस दर्द से के करोड़वें हिस्से के बराबर उसका हक नहीं अदा कर सकता। ये वो मकाम है। इस्लामिया कमा तफअलू तुजाज़ा, जैसा तुम करोगे बदला भी तुमको मिलेगा। अगर आपने अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी की है तो ऐसा नहीं है, वो दिन आएगा कि जब आप बाप बनेंगे, आप माँ बनेंगी और आपने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी कैसे इज्जत करेगा? अपने वालिदैन के फरमाबरदार करके रहो। माँ और बाप के किसी के दिल को तकलीफ ना पहुंचाओ। माँ के कदमों तले अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। तुमने माँ को राजी कर लिया, जन्नत तो हमारे बाप की हो गई। कैसे जाओगे जन्नत में? दरवाजा अंदर कमरे में आना है, दरवाजे से होकर के आना कि छत फाड़ के आ जाओगे? दरवाजे से होकर के आओगे ना, दरवाजे से होकर के आओगे। और बाप नाराज है, माँ राजी है, दरवाजे पर कैसे पहुंचते हो? तुमको दुत्कार किया जाता है, तुम मेरी बारगाह से लाते हो, मेरी बारगाह से तुमको दुत्कारा जाता है क्योंकि तुमने मेरा दिल दुखाया है। माँ कभी भी आपको माफ नहीं करेगी क्योंकि तुमने उसके शौहर के लिए तकलीफ पहुंचाई। तो रजामंदी दोनों की जरूरी है, बाप भी राजी होना चाहिए, माँ भी राजी होना चाहिए। हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत कोई मोहताज तारुफ है? आपकी अफजलियत क्या है? सबसे बड़ी अफजलियत यह है कि आपके निकाह में मुख्तारे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा